Good day, folks. A couple of days left for the last Charan, and then a couple of days left for the results. But what happened in the sixth Charan is kind of interesting, and it says at least 55% turnout in UP sixth phase, which was lower than last time. And for these guys to have won, it should have been a lot more. It's gonna be difficult in this area where they had actually belonged with their Apna Dal 150 out of the 57 seats. Now most people are giving them maximum 25. Right? Modi blames past governments for students going abroad. Pray, how does that work? Past governments. Can anybody tell him he's been in power for almost 8 years? And if he had to stop this outflow, he could have done that a long time ago. And most of these students studying overseas have gone during his period. Nail him. How students plotted their own escape routes out of war zone. Right? They plotted their own. Every student is saying, and besharmi se. There's some idiot on this C-160. I don't even know why he's on this big boy. And when he says, hey, Jai Bharat Mata ki Jai, all the kids say that. And suddenly he starts saying, Modi, Modi. And all the kids are, there's not a single arm that goes up, right? Mamta and Akhilesh launched joint attack on BJP for Modi stuff. In Varanasi, Mamta at SP side targets Modi, Yogi, Khela Hoga. From Khela Hove to Khela Hoga. Faced 7 elections to test popularity of Anupriya Patel because she's pitted against her brother Krishna Patel. In final blitz as elections wrap up, Priyanka seeks to make a point with her Varanasi address, Kabir Mutt. Important. She's changed the narrative pan-India about elections and women folks. Whether it pays back in UP, I don't know, but in India in 2024, she and the Congress are a force to reckon with. And watch the tape that's coming up. It shows you seat-by-seat analysis later on. And also what it shows you is UP may be the end of this Hindutva as a election mudda. It's going to be back, folks, thank God, to economics and rozgar. देखिए कि सरकार फेल ही हुई है. आप उत्तर प्रदेश से भी बात कीजिए या आप नेशनल लेवल पे केंद्र सरकार के बारे में बात, दोनों लेवल पे पूरी तरह से ध्वस्त हुई है बीजेपी. इनको ये पहले दिन से आपने, अगर आप अच्छे से पहले दिन फेज का इलेक्शन देखिएगा, वेस्टर्न यूपी से कार्ड वाला जो ट्रम्प कार्ड जिसे कह सकते हैं जो चल रहा था वो अब एक्सपोज हो गया है. इतने बड़ी बड़ी बातें करना कि 15 लाख वाला भी कुछ नहीं हुआ देश को, और उससे ज्यादा कि जिस तरह से इन्होंने किसान आंदोलन को हैंडल किया, किसान कृषि बिल अचानक लेके आए, कुछ उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया गया, जिस तरह से बड़े PSU, बड़ी बड़ी रेलवे, ये सब LIC, ये सब कुछ बेचा जा रहा है. ये धीरे 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 जो इनका हिंदू वाला जो कार्ड था वो मध्यम होता गया. आज क्या है कि हिंदू भी जो भी है, अगर आप यहाँ भी बात करें नहीं, हिंदू को खाना चाहिए, हिंदू को सुरक्षा चाहिए, हिंदू को रोजगार चाहिए. आज सड़कों पे इतना युवा सड़कों पे उतरा रहा, डंडे बरसाए गए यूपी में. आपको याद हो आरक्षण के मुद्दे पे बेचारे पिछड़ा हो या दलित का हो, रेलवे का आप अच्छे से सामने ही है. अब लोग क्या है कि अब लोग उनको ज्यादा हिंदू के बजाय उनको सिर्फ ये चाहिए कि हमें आप सुरक्षा दें, हमें रोजगार दें, हमें काम दें. अब आप ये देख लीजिएगा कि ये वाला चुनाव जो है, ये वाला चुनाव 2024 का एजेंडा फिक्स करने जा रहा है. इन्होंने जितनी मर्जी ये आप इसको इस चुनाव की जो भी रिजल्ट आए, लेकिन जो अभी तक जो ट्रेंड आ रहा है उसके अनुसार से हम ये कह सकते हैं कि इस देश में इन्होंने जितना वो जहर बोया था वो जहर खत्म हो रहा है इस चुनाव से, यूपी से ही. क्योंकि शुरुआत यूपी से ही होती है. यूपी से क्यों शुरुआत होती है? एक तो वहां ज्यादातर जितने हिंदू वाला सारा लोग है. दूसरा ये है कि वहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें हैं. सब जिसने कहते हैं ना कि उत्तर प्रदेश हस्तिनापुर को जीत लिया, वो देश जीत लिया. और इनका डाउनफॉल अब उत्तर प्रदेश से ही शुरू होगा. इनका हिंदू कार्ड भी उत्तर प्रदेश से ही खत्म होगा. और आप देख लीजिए अगला चुनाव जो होना है वो विकास पे होना है. आप साइंस से जान लेते हैं प्रबल प्रताप जी, कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हो गई है उत्तर प्रदेश में जिसकी काट RSS को भी समझ नहीं आ रही है? क्योंकि मुझे तो जहां से भी फीडबैक मिला है वो यही मिला है कि बीजेपी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है, वो हार जीत की अभ्यस्त है. RSS को लंबे समय के बाद एक सत्ता का हनीमून मिला था. चार्टर्ड प्लेन में बैठ के घूमना, फर्स्ट AC में रेलवे में घूमना, तमाम अच्छे होटलों में RSS के कैडर को जाना रुकना, और भी तमाम तरह की सुविधाएं उनको मिलना. लेकिन उनको भी उनके हाथ से ज्यादा दिक्कत उनको दिख रही है क्योंकि वो बिना थाईलैंड भी जाना, अभिषेक जी थाईलैंड भी जाना. अच्छा, तो ये जो परिस्थितियां हैं, क्या क्या दिख रहा है कि RSS के लोगों में बेचैनी ज्यादा दिख रही है इसको लेकर के, और उसका कोई काट RSS को नहीं मिल रहा है. कारण क्या है? ये है किसानों और गाँवों का एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक. इसका एक ही उत्तर है. गाँव ने, किसानों ने, नौजवानों ने जो सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी RSS के पास नहीं है. इसीलिए आज देखिए नौजवानों के बीच में ये कह रहे हैं कि हम इवैक्यूएट कर रहे हैं वहां से, यूक्रेन से. जब बच्चे इवैक्यूएशन प्लान ये होता है कि यूक्रेन से निकाल के लाइए, यूक्रेन से कह रहे हैं निकल के खुद आओ बॉर्डर पे, मैं बॉर्डर पे बैठा हूँ, वो तो आप भी कर लोगे. और इनके मंत्री PR एजेंसी की तरह काम कर रहे हैं, PR एजेंट की तरह, और वहां पे जाके भारत माता की जय का नारा लगा रहे हैं तो नौजवान लगा रहे हैं. लेकिन जैसे ही मोदी जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं नौजवान शांत हो जा रहे हैं, छात्र शांत हो रहे हैं. यहीं से सोच लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का जो उनका एक औरा था वो समाप्त हो गया, वो टूट गया है. कोरोना काल हो, ऑक्सीजन के सिलेंडर वाला मामला हो, नोटबंदी हो, GST हो, किसान आंदोलन हो, धीरे 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 और यूक्रेन का मामला गया.
नरेंद्र मोदी के बारे में जो उनकी लार्जर देन लाइफ जो इमेज बनी थी, वो इमेज जो है टूट चुकी है। So the YouTube videos by Deepak Sharma below analyze seat by seat, and you can see that they're the key critical seats he's analyzed, and you can see that the Hawa is really not with the BJP, and they're in a struggle in this place, right? And the opposition, pan India, seeing that, noting it. Mamta is already standing shoulder to shoulder with Akhilesh. What do we have here? Key opposition leaders share stage at CM Stalin's book launch in TN. KCR steps up efforts for an anti-BJP front set to meet more opposition leaders. Then you have West Bengal civic polls, violence and malpractice reported 76% polling. Trinamool Congress wins majority in 102 civic bodies in West Bengal. So it's downhill for the BJP in all major urban centers, folks. So it is trouble time. And within itself, the Karnataka is another piece that's in play. Will towards state Yediyurappa on his birthday. Yedi, a big trouble for good old Modi in Karnataka. Cheers. नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आते आते 6th फेज भी आ गया, छठा दौर भी आ गया, सेकंड लास्ट दौर भी आज खत्म हो गया। पोलिंग हो गई, मतदान हो गया, और यूं कहें तो 403 में से 349 सीट, ऑलमोस्ट 350 सीट पर फैसला हो चुका है, ईवीएम में बंद हो चुका है, और सिर्फ 54 सीट बची हैं, 7th राउंड बचा है। राज जी ने वहां पर बनारस में गंगा किनारे से कहा, खेला हो पे। सुनिए पहले कि खेला होगा करने जा रहा हूं। पहले मैं बताना चाहूंगा आपको कि ये योगी की बेल्ट है, ये गोरक्ष मंदिर की बेल्ट है, जिसके चारों तरफ देवरिया है, बलिया है, कुशीनगर है, फिर आप सिद्धार्थ नगर और महाराजगंज देख लीजिए, बस्ती देख लीजिए, बलरामपुर देख लीजिए। पहचान इसकी जो है वो योगी से होती है। और अगर हम देखें मैदान योगी और संजय निषाद की, और एक जोड़ी जो यहाँ पर एक्टिव है वो अखिलेश और ओम प्रकाश राजभर की, ये 4 लोग मूलतः हैं इसमें। अब राजभर के साथ अखिलेश की ट्यूनिंग बहुत अच्छी है, राजभर वोट भी इस बेल्ट में है, लेकिन योगी और संजय निषाद की जो जोड़ी है, मैंने कल भी आपको बताया था 36 का आंकड़ा है। योगी जी संजय निषाद से उनसे बात हुई है, उनका यह कहना है कि कहीं ना कहीं निषादों में नाराजगी दिखी, और निषाद जो यहां हर गली गांव में है, और मैंने पहले भी इस चीज को अंडरलाइन किया था कि इस गोरखपुर बेल्ट में निषाद भारी संख्या में, लेकिन योगी जी का क्योंकि संजय निषाद से मसला है, 36 का आंकड़ा है, तो एक भारी डेंट योगी और निषादों की नाराजगी की वजह से यहां देखने को आज मिली। एक और चीज बेचैनी है, ये क्या संकेत कर रही है इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन बस्ती के जो बीजेपी के सांसद बहुत एक्टिव रहते हैं, हरीश द्विवेदी ने आज जो एक तरह का बयान दिया, वाकई गौर करने लायक है। उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि ये जो ब्यूरोक्रेसी है, जो नौकरशाही है, जो आईएएस अधिकारी हैं, ये जो आईपीएस अधिकारी हैं, पीसीएस, पीपीएस, डीएम, एसडीएम, ये सब अखिलेश के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये एंटी बीजेपी है। अब ये जो बयान है चौंकाने वाला है कि आखिर सत्ता पक्ष के इतने बड़े नेता अपने ही चुने हुए, अपने ही नियुक्त किए गए अधिकारियों पर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं। प्रशासन का जो रवैया पूरे चुनाव के दौरान रहा है वो एंटी भारतीय जनता पार्टी रहा है, और प्रशासन ने कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में काम किया है। अब दोस्तों, और भाजपा का हिंदुत्व का प्रतीक, हिंदू हृदय सम्राट गोरखपुर से लड़ रहा है, गोरक्ष सीट से। परसेंटेज ऊपर जाना चाहिए था, कम से कम हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 60% पोलिंग होनी चाहिए थी, लेकिन 5 बजे तक 51.98% है। 5 बजे तक का आंकड़ा जो है 51.98, ये जो आंकड़ा काफी कम है, और ये आंकड़ा हताश करता। मैं ये नहीं कह रहा हूं योगी हार रहे हैं, इसका So in the end, folks, as you can see from Deepak Sharma, all seats seem to be in trouble in this Gorakhnath area, which is Yogi's area, right? And this is the other thing that's really going to come and hit us really big time, come just right after 7th. Fuel prices poised to flare up as oil hits 8-year high of $130. Freedom House again rates India partly free. It's probably right. BJP does not have boss in Delhi, will cut state poverty rate to 10% in 5 years, says Naveen. And remember, Odisha, they won again by landslide the civic elections, right? The trouble that the BJP is creating to destabilize governments, because it's on a, that's all it does. PIL seeks CBI probe into bid to topple Soren government. The government and RPN Singh was apparently part of it, right? And now he's with the BJP enjoying himself. Tejasvi Chirag meet. This is the other problem they're going to have is in Bihar. Bihar is going to be in turmoil if they lose and lose big, right? LTT using fake IDs, docs in revival bids, says NIA. This will be the arrest of a Sri Lankan woman by Tamil Nadu police on October last year, revealed the involvement of LTT, NIA said. So here this is going to be another stick that may be used to destabilize the DMK government, right? Former Kishore aide who worked on BJP's 2017 UP campaign joins Congress.
hey, what to do. But let's see Gujarat model here, folks. 6,000 crore coal scam in Gujarat in 14 years, alleges Congress. And besides all the scamsters who run away, you got it, Gujaratis. Anonymous businessman donates 60 kg of gold to Kashi temple. And then get this, God meets gold meets faith in PM's works at Kashi Vishwanath temple. So this whole gold, 37 kg gold plating was done before PM's visit. What about the poor folks? I thought you'd take this gold and monetize it and feed the poor and do something like that, like the Gurdwara doing in Nanded. You know, they're giving the land, they're using all the money, all the gold they have to build a medical school. What about the Kashi temple, folks? What about the Kashi temple? I'm told it's taken away by all the Gujarati businessmen that have destroyed this sanctimonious, this incredibly old historic temple for glitz. Shiv is not supposed to be glitzy god at all. Jai Hind. फतेह बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह के बेटे काजल निषाद के साथ लड़ रहे हैं। और यहाँ पर जो खबरें आ रही हैं वो ये आ रही हैं कि फतेह बहादुर मुश्किल में है, क्योंकि काजल निषाद ज़्यादातर निषादों की वोट लेकर मुझे लगता है कि उन्हें प्रभावित किया है। काजल निषाद ने, भोजपुरी फिल्म की हीरोइन है। गोरखपुर ग्रामीण 54% यहाँ पर पोलिंग हुई है 5 बजे तक। और यहाँ पर जो विपिन सिंह जो योगी जी के शिष्य हैं, ये मुसीबत में लग रहे हैं। पिछली बार बड़ी मुश्किल से जीते थे 10 तारीख को चौरी चौरा में श्रवण निषाद, जो निषाद जी के बेटे हैं संजय निषाद का, जिनका 36 से आंकड़ा चल रहा है योगी जी का। और योगी जी ने बिल्कुल मदद नहीं करी श्रवण निषाद की, बल्कि उन्होंने अपने एक शिष्य को वहाँ से लड़ा दिया, जिसकी मैंने खबर पहले करी थी, आप लिंक में जाकर देख सकते हैं। 52% पोलिंग 5 बजे तक हुई है। और श्रवण निषाद ऐसा लग रहा है कि रेस में काफ़ी पीछे हैं, और जिसका फायदा ब्रजेश चंद को मिल रहा है, नहीं समाजवादी पार्टी को मिल रहा है। चिल्लू बार भले ही विनय शंकर तिवारी के साथ कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि वोटर लिस्ट उनको धोखा दे गई हो, कुछ समर्थक जो हैं उनको वोट लिस्ट से उनका नाम चला गया हो, लेकिन विनय शंकर तिवारी ने बड़ी अच्छी फील्डिंग यहाँ लगाई है। ब्राह्मण यहाँ निर्णायक हैं, दलितों में उनकी अच्छी पैठ है। और जो बसपा का जो उम्मीदवार है राजेंद्र पहलवान सिंह, वो बहुत अच्छी फाइट कर रहे हैं। और राजेश त्रिपाठी लहर में भी विनय तिवारी से हारे थे। ये एक बड़ा जो कह सकता हूँ हाईलाइट है। खेल खेला गया, पहले उन पर मुकदमा लिखाया गया, उसके बाद 3 दिन पहले उनके काफिले पर अटैक हुआ। उनकी बेटी जो हैं उनको जो है संघमित्रा मौर्य, उनको कहीं ना कहीं फप्तियाँ कसी गई। और उसके बाद कल उनके बेटे को थाने पर बैठाया गया, स्वामी प्रसाद मौर्य का। तो मौर्य के अंदर जो मौर्य बिरादरी है, उसने इस चीज़ को दिल भर लिया है कि हमारे नेता के साथ ये सलूक। तो एक कह सकते हैं एम्पैथी फैक्टर, सहानुभूति कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ है। और सुरेंद्र कुशवाहा जो अच्छा लड़ रहे थे 5-6 दिन पहले तक बीजेपी की तरफ से, अब थोड़ा सा मुश्किल में दिखते हैं। पति पत्नी और वो मतलब टिकट, यहाँ पर टिकट को लेकर लड़ाई हुई, जिसमें स्वाति सिंह को टिकट नहीं मिला सरोजिनी नगर से। दयाशंकर ने टिकट लिया, अमित शाह के बहुत करीबी हैं, धर्मेंद्र प्रधान के बहुत करीबी हैं। दयाशंकर को इंपॉर्टेंस इस वजह से दी गई क्योंकि वो अपर्णा सिंह यादव उनको भाजपा में लेके आए थे, और कई बड़े ऑपरेशन उन्होंने जो है वो अमित शाह के लिए उत्तर प्रदेश में किए। खासकर विपक्षी खेमों में उन्होंने बहुत बड़ा डेंट मारा है। लेकिन दयाशंकर पे डेंट लगने जा रहा है, क्योंकि नारद राय अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और नारद राय के समर्थकों पर आज वहाँ काफ़ी भीड़ देखी गई, खासकर उनके बस्तों पर। दयाशंकर सिंह आप कह सकते हैं कि एक मुश्किल विकेट पर है। वहाँ पर प्लेयर हैं, सिल्वर जुबली कह सकते हैं आप। राजेंद्र कुमार है समाजवादी पार्टी के, हारते ही नहीं कभी, तो इनके बारे में मैं खुद टिप्पणी नहीं करूँगा। जो लगातार आदमी जीतता चला रहा है इस लहर में, अगर जो समाजवादी पार्टी की जो ओबीसी का चंक इस वक्त है, और खासकर मुस्लिम यादव का जो समीकरण है, राम गोविंद चौधरी पर मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा। आप मान के चलिए कि इनको एक एज है। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में नेता विपक्ष हैं ये। कटहरी अम्बेडकर नगर चलते हैं, और यहाँ पर लालजी वर्मा, मायावती के सबसे खास नेता लालजी वर्मा, जो बरसों बरस कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वो यहाँ से भाग्य आजमा रहे हैं। आज काफ़ी उत्साह देखा गया उनके खेमे में। और अवधेश द्विवेदी जो थे, थोड़ा सा जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं उनके माथे पर शिकन थी। और वैसे भी ओबीसी का गढ़ है अम्बेडकर नगर, और लालजी वर्मा ओबीसी के बड़े चेहरे हैं, प्लस मुस्लिम और यादव उनको बोनस में यहाँ पर मिल रहा है। पटन सीट है राम अचल राजभर की, और राम अचल राजभर वो शख्स हैं जो मायावती के किसी ज़माने में आप कह सकते हैं कि राइट हैंड मैन कहे जाते थे, जो आज हैसियत सतीश चंद्र मिश्रा की है। लेकिन बाद में रामाचल राजभर का मायावती से थोड़ा 36 का आंकड़ा हुआ, और उसके बाद उन्होंने बहन जी को साथ छोड़ा। अमित शाह ने उनको बुलाया कि आप आइए, ओबीसी की गद्दी संभालिए। लेकिन रामाचल राजभर ने हवा का रुख 3 महीने पहले यूपी का भांप लिया था, वो साइकिल पर जाके बैठ गए। उनकी साइकिल रफ्तार पकड़ रही है अकबरपुर में। दोस्तों सीटें कई हैं, जैसे बलरामपुर से जो खबरें आ रही हैं, बलरामपुर में समाजवादी पार्टी के ज़्यादातर कैंडिडेट जो कांटे की टक्कर में हैं बीजेपी के, वहाँ पर जो पोलिंग परसेंटेज थोड़ा कम हुआ है। ये एक अच्छी खबर पूरे ज़िले में बीजेपी के लिए नहीं है। इसके अलावा बस्ती का आपने हाल देख लिया, इसलिए मैंने बस्ती का जिक्र नहीं किया, क्योंकि वहाँ के जो सांसद हैं वो स्वयं आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है वो भाजपा का विरोध कर रहा है, यानी योगी के ऑफिसर योगी के ही उम्मीदवारों का विरोध कर रहे हैं।
तो दोस्तों जो सीटें आपने देखी कमोबेश यही स्थिति बाकी सीटों पर भी है। कांटे की टक्कर है, बाइपोलर फाइट है, सीधी लड़ाई है समाजवादी पार्टी भाजपा की। भाजपा के पक्ष में जो चीज़ें नहीं जा रही हैं वो हैं जनता का आक्रोश, कोविड की दूसरी लहर, महंगाई, बेरोजगारी।